یہ تو ایک واقعہ ہوا ہے جو ٹیررزم کا ہے، ڈیفینیٹلی بڑا قابل مذمت بھی ہے. آج ان شہید ہونے والے اہلکاروں کی نماز جنازہ بھی ہوئی، وزیر اعلیٰ نے بھی شرکت کی، گورنر نے بھی شرکت کی، بعد میں اس جگہ پر گئے بھی. اصل مدعا یہ ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، 3 اس میں ہلاک ہوتے ہیں دہشت گرد خوارج، اور ایک جو زخمی پکڑا جاتا ہے وہ افغان شہری بتایا جاتا ہے. یہ جو کراچی میں افغان شہریوں کو جو غیر قانونی افغان وہاں پر رہ رہے تھے، ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن بھی ہوا تھا، کتنا کامیاب ہوا اور کتنی بڑی تعداد میں افغانیوں کو وہاں سے نکالا گیا جو غیر قانونی طور پہ مقیم تھے؟ دیکھیں، افغان باشندوں کی بات کریں تو اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، اور بہت ساری انکوائریز اور جو تفتیشیں ہوئی ہیں اس طرح کے واقعات کی، اس میں جو ہے وہ افغان باشندے ہی اس میں شامل تفتیش میں سامنے آئے ہیں، ان کی بھی انوالومنٹ سامنے آئی ہے. 2023 میں افغان باشندوں کے خلاف اس سے پورے ملک میں جس طرح آپریشن شروع ہوا، اس طرح کراچی میں بالخصوص ایک بڑا آپریشن ہم نے دیکھا کہ اس میں شروع کیا گیا، جس میں سپر ہائی وے پر ایک افغان بستی تھی جس کو خالی کرایا گیا، اور اس کے بعد اس بستی کو جو ہے وہ بالکل مسمار بھی کر دیا گیا. لگ بھگ 24 لاکھ، کراچی کی بات کروں تو لگ بھگ 24 لاکھ سے زائد جو یہ غیر ملکی جو تھے باشندے، جو افغان شہری تھے، ان کو کراچی سے ملک بدر کیا گیا. باقاعدہ 24 طور پہ لاکھ 24 لاکھ سے زائد یہاں کراچی شہر سے جا چکے ہیں. اوور آل پورے پاکستان کی بات کریں تو تقریباً 60 لاکھ سے زائد کا فگر سامنے آیا تھا. یہاں جو لوگ تھے، اب اس میں صرف یہ دہشت گردی نہیں، دیکھیں یہ انہوں نے کئی دہائیوں سے یہ افغانی جو ہیں افغان باشندے پاکستان کراچی شہر میں رہ رہے تھے. تو جو لازمی بات ہے، اس شہر میں رہنے کے بعد ان کو گلی کوچے ہر علاقے کے بارے میں معلومات تھی، اور اب یہاں سے ان کو افغانستان منتقل کر دیا گیا، جہاں اس طرح کی جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ان کو بالکل استعمال کر سکتی ہیں ریکی کے لیے بھی، کہ یہاں آ کے وہ چھپ چھپا کے جیسے یہاں آتے ہیں، اور ان کو کیونکہ وہ یہاں پہ کئی دہائیاں گزار چکے ہیں، رہ رہے تھے، اب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کو علاقے تو سارے پتہ ہے کس طرح کون سا راستہ کدھر ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں. تو جی یہ وہی ساری چیزیں استعمال ہوتے چھوٹے ہیں. بڑے وہ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح چھوٹے بڑے جو کراچی میں واقعات تھے، وہ دہشت گردی کے لے لیں، چوری ڈکیتی کے لے لیں، یا چھوٹی موٹی چوریوں کے لے لیں، اس میں بھی افغان شہری ہی مختلف فوٹیجز میں سامنے آتے ہیں. میں اس کو ضرور انڈوز کروں گی. خرم، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی، ذرا ظاہر شاہ شیرازی صاحب سے اس حوالے سے بات کروں، لیکن آپ کی جو بات ہے نا دیگر کرائمز میں، اسپیشلی جو اسٹریٹ کرائمز میں، جب لاسٹ ٹائم میں کراچی گئی اور میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا اسٹریٹ کرائمز میں کمی واقعی ہو، تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ چونکہ جو غیر قانونی افغان شہری تھے ان کو بے دخل کیا، تو کرائمز میں خاص کر اسٹریٹ کرائم میں واضح کمی آئی ہے. ظاہر شاہ شیرازی صاحب، اب یہ تو جماعت الاحرار کے حوالے سے جو آ رہی ہیں کہ جماعت الاحرار کے خوارج نے یہ دہشت گردی کی ہے، کل جو رینجرز کیمپ آفس میں کراچی کیمپس میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اور جو حملہ ہوا ہے، یہ جماعت الاحرار کا نیکسس آن اینڈ آف طالبان کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ان کا بیس کیمپ کیا ہے، اور آج ان کا نیکسس اسٹرانگ ہے جو ٹی ٹی پی ہے، جو خوارج ہیں؟ دیکھیں نادیہ، سب سے عام ایشو یہ کہ جماعت الاحرار مومند ایجنسی یا مومند ٹرائبل ڈسٹرکٹ اور باجوڑ میں زیادہ تر افیکٹو تھی، اور یہ کلعدم جو دہشت گرد گروپ ہے ٹی ٹی پی، وہ اس کا حصہ تھی. بعد میں اپنے اختلافات کی وجہ سے یہ ڈائیورٹ ہوئے. خالد خراسانی ان کا چیف تھا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں افغانستان کے اندر جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں، چاہے وہ کلعدم ٹی ٹی پی ہے، وہ داعش ہے، وہ القاعدہ ہے، یا جماعت الاحرار ہے، اتحاد المجاہدین ہے، ان سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا. میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ان کی یہ تمام دہشت گردی کی کارروائیاں لمیٹڈ نہیں ہیں صرف ایک گروپ کے طور پہ، بلکہ اگر دیکھا جائے تو افغان طالبان رجیم اس وقت ان کو باقاعدہ پیٹرنائز کر رہی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بار بار ایک بات، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ افغان طالبان رجیم کو ہم نے کنوے کیا ہے. ہم نے کیا کنوے کیا؟ بلکہ آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو رپورٹ ہے آپ اس میں دیکھیں، پھر آپ دیکھیں افغان جو طالبان مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کو دیکھیں. حال ہی میں ایف ایس ڈی جو کہ رشین گورنمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کے سربراہ جو ہے، انہوں نے ایک الیگزینڈر بیٹنارٹ، انہوں نے ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو ڈیٹا بیس دیا ہے کہ کتنے دہشت گرد گروپ ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، کون کون سی ان کی لیڈرشپ ہے افغانستان کے اندر، کنڑ، پکتیا، پکتیکا، نمروز، کون سے صوبوں میں وہ، کہاں ان کے لوکیشنز ہیں، یہ تک دی گئی ہیں. پھر آپ دیکھیں بڑے بڑے جو کمانڈر ہیں، آج نور علی مسعود کو دیکھیں، ابھی جو احمد منصور ہیں جو کلعدم یہ جماعت الاحرار دہشت گرد گروپ کے
तर्जुमान है, उन्होंने ये दावा किया कि हमने ये काम किया, बल्कि ये उन्होंने बाकायदा जो अफगान से मैं उस पर कॉल करके और वहाँ से जो है ना वो चीज़ें अपलोड करके लोगों को बताया। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान की कंसर्न भी बड़ी जो है ना वो वैल्यू रखती है, और इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान की जो तमाम तर दावे हैं उनको इंडोर्स किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और दूसरा, कराची में हमला करने की बड़ा, मैं समझता हूँ, बड़ी अहम वजह है, और वो ये है कि इस वक्त आप देखें पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी जो इफेक्टिव मिलिट्री डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी है, उसकी वजह से एक तीसरी आलमी जंग रोकी। और इस वक्त जो पाकिस्तान का मोराल डिप्लोमेटिकली हाई हो रहा है, पाकिस्तान का स्टेचर जो हाई हो रहा है, तो कराची जैसे शहर को हिट करने का मतलब है कि वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस इमेज को ख़राब किया जाए। तो ये भारत के अंदर बैठे हुए जो फितना अल खवारिज के लीडरशिप है और साथ अफगानिस्तान तालिबान की जो रजीम है वो मिलकर, और एक और बड़ी अहम खबर आपको दूं, इस वक्त लद्दाख एक ऐसा मरकज बन चुका है, लद्दाख माउंटेन्स ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, कि जहाँ मुसाद और रा का एक मुकम्मल ट्रेनिंग कैंप कायम किया है, जहाँ इन्हीं अफगान और फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और अभी भी अगर आप देखें तो इवन जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट है कि लद्दाख में बाकायदा इस वक्त जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले हैं उसमें बाकायदा अबरानी ज़बान का मेन्यू जो है ना वो तकसीम किया जा रहा है। तो इट मीन्स के ये एक मुकम्मल नेक्सस है, और इस नेक्सस में सिर्फ अफगान तालिबान या जो मकामी दहशतगर्द ग्रुप शामिल नहीं है, बल्कि आप देखें इसमें रा मोसाद का एक कंप्लीट नेटवर्क है। और फिर आप इनको देखें जो इनकी फाइनेंसिंग हो रही है वो आपकी मिडिल ईस्ट से होती रही है। अगर हम नाम नहीं लेते यूएई का, बहरीन का और कुवैत का, तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जितनी इस वक्त एक्टिव फाइनेंसिंग टू कराची नेटवर्क होती रही है, जो कि पिछली ईरान इसराइल जंग में पकड़ा गया था, एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो कि यहाँ से सप्लाई करता था बीएलए को, बीआरए को, बीएलएफ को, और सो कॉल्ड जो बलोच यकजहती मूवमेंट है उसके एक बहुत बड़े नेटवर्क को यहाँ से बस्ट किया गया, जो ना सिर्फ फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व रहा, बल्कि यहाँ बाकायदा जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के खिलाफ, वो बड़ा एक्टिवली जो है ना वो यहाँ से चलाया जाता है। शिराजी साहब, आपने बड़ा अहम और बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया है कि पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की नेक नामी, पाकिस्तान की मशहूरी हमारे दुश्मनों को डेफिनेटली हज़म नहीं हो रही होगी। इसी वजह से ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती है। जो नेक्सस है इस वक्त इंडिया और अफगानिस्तान का, वो भी हमारे और आपके सामने इसलिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद हमारे पास मौजूद है। खुर्रम, ज़रा कल के वाक़े के बाद शहर भर में क्या सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं? सिक्योरिटी मज़ीद अब हाई अलर्ट है, और हुकूमत का इस पर क्या कहना है इस वाक़े पर? देखें, सिक्योरिटी जो है वो रात ही हाई अलर्ट कर दी गई थी। आईजी सिंध और आईजी कराची की जानिब से तमाम जो फसाद हैं, तनसीबात हैं, सरकारी इदारे हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिलखुसूस जो स्नैच चेकिंग है उसको इन्होंने मजीद सख्त किया है। टाइमिंग जो है वो उसकी मजीद दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है। और ज़्यादातर पुलिस की जो गश्त है वो मोटरसाइकिल है वो बढ़ाई गई है, और ख़ासकर जो तफरीह मुकामात हैं, पिकनिक पॉइंट्स हैं, और जो सरकारी इमारतें हैं और सरकारी तनसीबात हैं, इन जगहों को रात ही जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया था। जब एडिशनल आईजी और आईजी सिंध मौके पर पहुंचे, उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ देखी, उसके बाद ही हमने देखा कि शहर की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई थी। और आज दिन भी हमने देखा कि शहर के अंदर इस तरह की सूरत हाल है कि जगह जगह मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो पुलिस के बना दिए गए हैं। रेंजर्स बिल्कुल अच्छा, फर्दर इनके नेक्सस को एक्सपोज करने के लिए कुछ मजीद गिरफ्तारियां या मजीद कोई छापे या मजीद कोई सर्चिंग? देखें, रात से ही इस सिलसिले में जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पे सर्च ऑपरेशन भी किया गया, जो कि बिल्कुल तो पुलिस की जानिब से किया जाता है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि हमको कॉम्बिंग ऑपरेशन का नाम जो दिया गया है। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो होटल्स हैं, जो प्राइवेट रूम्स जो दिए जाते हैं, जहाँ पे सब एक मुश्तरका तौर पे जो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग रिहाइश पजीर बाकायदा बायोमेट्रिक चेक किया। बिल्कुल ठीक है। शिराजी साहब, आप इस हवाले से फरमाइएगा कि जिस जमात एहरार की हम बात कर रहे हैं, क्या ये इतनी स्ट्रॉन्ग जमात है या बाकायदा तौर पर इसमें मेजॉरिटी है? क्योंकि जब इसका एक इत्तेहाद हुआ था उस वक्त फितनतुल खवारिज के साथ, तो उस वक्त कुछ ये तादाद में थे, बाद में ये उसमें से निकले भी। और इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि जो अक्सरियत है वो गैर मुल्की जंगजू इसमें शामिल है। देखिए नादिया, इसमें एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इन ग्रुपों की सर्वाइवल एक दूसरे को सपोर्ट करने में। बेशक हमने सुना कि किस ज़माने में जब खालिद खुरासानी और आपने एहसानुल्लाह एहसान साहब का नाम सुना होगा, जो कि तर्जुमान होते थे, जमातुल अहरार
उन्होंने जो है अनाउंस की थी कि हम इनसे एक स्प्लिंटर ग्रुप अलग बना रहे हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान की रियासत के साथ जो है बातचीत के जरिए और पुरअमन तरीके से जो है ना मामलात हल करने की कोशिश की, तो जमातुल अहरार सामने आ गई। तो यही टैक्टिक्स हैं कि अगर एक मेजर ग्रुप सामने आके बात करता है तो दूसरा छोटा स्प्लिंटर ग्रुप उसके नाम पे आगे कार्रवाई शुरू कर देता है। इसमें आप देखें, इनकी एक जो मेन रीज़न है इतनी इफेक्टिवनेस की, उसके अंदर इनका अलकायदा के साथ लिंक था। दूसरा आप देखें, ये तमाम के तमाम अपने आप को जो बैतुल्ला अखुंज़ादा हैं अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर, उनके साथ ये जो है उनकी बैत के अंडर काम करते हैं। तो इसमें अफगान तालिबान अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकते कि बड़ी वजह ये कि ये तमाम के तमाम ग्रुप अपनी एफिलिएशन को उनको बताते हैं, और ये उनके, मैं तो ये समझता हूँ कि अफगान तालिबान और इन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों में इस वक्त कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। अच्छा शाजी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जरा मुझे केपी के हवाले से भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन साथ ही इसके ब्रीफ कीजिएगा कि वहाँ पर भी हम गाये बगाए सुन रहे होते हैं ये दहशतगर्दी के वाक़यात। देखिए, मेरे ख्याल में आप हमारे जो साबका मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, वहाँ आप देखें हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बनू में हम देखते हैं कि जो लोग दहशतगर्दों के खिलाफ उठते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन अब मकामी आबादी अब उठना शुरू हो गई है। बनू में भी, डीआई खान में भी, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान के अंदर भी। बेशक उन लोगों के मकामी इशूज़ हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, डेवलपमेंट के इशूज़ हैं, उनको पाकिस्तानी रियासत को देखना चाहिए। लेकिन एक तो मेरे ख्याल में जो सूबाई और मरकज़ी हुकूमत की आपस की जो चपकलिश है या एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा करने के लिए। इवन आप देखें कि पेशावर के इर्द गिर्द जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ भी आपको बड़ी हद तक लॉ एंड ऑर्डर के इशू नज़र आएंगे। तो प्रायोरिटी नज़र नहीं आती। मरकज़ी हुकूमत सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार ठहराती है 18th अमेंडमेंट के बाद, जबकि सूबाई हुकूमत का ये मौक़िफ़ हमेशा रहता है कि हमें फंड नहीं दे जा रहे, फाटा डेवलप नहीं हो रहा, मरकज़ी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं करी। देखिए, ये जो एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन इस वक्त सूबे को बड़े मुश्किल सूरत हाल का जो है सामना है और सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम तरीन एक और नुक्ता आपने उठाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।